আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডা। তিনিখনকৈ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে নাড্ডাই। আৰু তাৰ পিছতেই UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। কোকৰাঝাৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত জে.পি. নাড্ডাই কয়, পূৰ্বে বড়োভূমি আৰু অসমত অশান্ত জৰ্জৰ পৰিৱেশ আছিল। অসমলৈ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত শান্তি ঘূৰি আহিছে। 70% স্থানৰ পৰা আফস্পা আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। কংগ্ৰেছৰ দিনত দিল্লীয়ে অসম ঢুকি পোৱা নাছিল। বিজেপিৰ দিনত অসমক মৰমৰ চকুৰে চাইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, এইবুলি উল্লেখ কৰে জে.পি. নাড্ডাই। ইফালে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ ওৰাঙত তৃতীয়খন সভা সম্বোধন কৰে জে.পি. নাড্ডাই। দলীয় প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। আৰু গোৱালপাৰাতো আন এখন জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। আমি পোনপটীয়াভাৱে এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক লৈ গৈছো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ দুধনৈত প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে জে.পি. নাড্ডাই। আৰু দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে জে.পি. নাড্ডাক আদৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত দুধনৈৰ পৰা। আৰু দুধনৈতে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে জে.পি. নাড্ডাই। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় সাংসদ সন্মানীয় কুইনজা ডাঙৰীয়ানী বাইদেউ, এইবাৰ তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি গোৱালপাৰা জিলা সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত ভৃগুৰঞ্জন ৰাভা ডাঙৰীয়া, অসম প্ৰদেশৰ সন্মানীয় সভাপতি শ্ৰীযুত এইবাৰ সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ লৈছো। আৰু উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে জে.পি. নাড্ডাক। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দুধনৈৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছো। আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে যিহেতু অসমলৈ আহিছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকী, আৰু বৰ্তমান সময়ত দুখনকৈ জনসভা তেওঁ সম্বোধন কৰাৰ পিছতেই দুধনৈত গৈ উপস্থিত হৈছে। দুধনৈত নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাইছো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ দুধনৈত নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাবৰ বাবে উপস্থিত হৈছেগৈ জে.পি. নাড্ডা। আৰু আদৰ সম্ভাষণ তেওঁক জনোৱা হৈছে, আদৰণি জনোৱা হৈছে দুধনৈত। আৰু বিজেপিৰ দলীয় নেতাকৰ্মীসকল উপস্থিত হৈছে আৰু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীক এইদৰে আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। উষ্ম আদৰণি জনাইছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডাক। बोलिए भारत माता की, जरा जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष श्री भवेश कलिता जी, हमारे एनडीए के साथी UPPL के चेयरमैन और BTR के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी श्री प्रमोद बोरो जी, श्री तानकेश्वर राभा जी, CM राभा ऑटोनमस काउंसिल, हमारी प्रत्याशी यहां से बहन श्रीमती बिजली कलिता मेधी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेत्री और जिन्होंने यहां से लोकसभा का नेतृत्व किया, ऐसी हमारी बड़ी बहन क्वीन ओझा जी, श्रीमती नंदिता गरलोसा जी, तीनामोनी दायमेरी हमारी स्टेट सेक्रेटरी, हमारे हेमंगा ठाकुरिया जी, श्री विजय कुमार गुप्ता जी, भृगु रंजन राभा जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अंजन गोस्वामी जी, जितेंद्र दास जी, रामाकांत राभा जी, दीपक कुमार नाथ जी, दीपांकर जी, हिमांशु बैस्या जी, हमारे गायत्री नाथ जी, अपराजिता भुयान जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में
अंदर और बाहर बैठे हुए देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज मां कामाख्या के इस पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं मां कामाख्या को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। ये जो मैं संख्या देख रहा हूं, ये जो मैं महिलाओं की संख्या देख रहा हूं, ये जो मैं उत्साह देख रहा हूं, ये जो मैं उमंग देख रहा हूं, इसने मुझे स्पष्ट कर दिया है कि आपने गुवाहाटी से फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन बिजली कलिता जी को चुनाव में दिल्ली एमपी बनाकर भेजने का निर्णय कर लिया है, निर्णय ले लिया है, ये मेरे को साफ दिख रहा है। मित्रों, जब मैं चुनाव की बात करता हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत की राजनीति का तौर तरीका, भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति की परिभाषा, डेफिनेशन, ये सब बदल गई है। पहले राजनीति होती थी भाई को भाई से लड़ाओ, इलाके को इलाके से लड़ाओ, देश को प्रदेश से लड़ाओ, नदी के इस पार नदी के उस पार का झगड़ा पैदा करो, धर्म के नाम पर झगड़ा पैदा करो, भाई को भाई से लड़ाओ और वोट बैंक की राजनीति करो और अपना काम निकालो। यह राजनीति कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक चलाई, लेकिन मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा बदल डाली। आज राजनीति का मतलब है विकासवाद, डेवलपमेंट। विकास का मतलब है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज विकास का मतलब है सबके साथ न्याय और किसी के साथ भी तुष्टीकरण नहीं। पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट को बाय बाय, छुट्टी। अब पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट नहीं चलेगा। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको बढ़ाने का काम किया। दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी की राजनीति, जवाबदेही की राजनीति, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। अभी मेरे से पहले जितने भी वक्ताओं ने यहां से भाषण दिया होगा, सबने आपको गुवाहाटी का और असम का रिपोर्ट कार्ड रखा होगा, बताया होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से विकास हुआ है, बताया होगा। पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ प्रो रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट। और इसीलिए आपने देखा होगा 10 साल पहले असम मतलब बंद, असम मतलब बॉम्ब, असम मतलब ब्लॉकेड, असम मतलब नो डेवलपमेंट और असम मतलब हर तरीके का क्राइसिस। आज मोदी जी ने असम को बदल दिया। असम मतलब डेवलपमेंट, असम मतलब पीस, असम मतलब प्रॉस्पेरिटी, असम मतलब डिजिटल असम, असम मतलब हेल्थ केयर, असम मतलब एजुकेशन हब। आज ये इस तरीके से 10 साल में मोदी जी ने असम को बदल डाला है, वो आपने देखा। और इसलिए अब असम शांति, सुरक्षा, सुशासन, सशक्तिकरण, इसके पर्यायवाची बन गया, तो असम बन गया। इसको हमको समझना चाहिए। आज मुझे खुशी है, बताइए आज गांवों का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है?
गांव का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? गांव में पक्की सड़कें पहुंची है ना? ऑल वेदर रोड पहुंचा है ना? आपको मैं बताना चाहता हूं कि 7,60,000 किलोमीटर सड़क गांव की पक्की की गई है। 7,60,000 किलोमीटर। और पिछले 10 सालों में 1,70,000 गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। आपको जानकर खुशी होगी, भारत आज से 10 साल पहले ये पिछलग्गू भारत था। दुनिया में हमारा अर्थ जगत में, आर्थिक जगत में 11वां नंबर था। 11वां नंबर। हमारे आगे छोटे छोटे देश खड़े थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज देश ने 11वें नंबर से छलांग लगाकर ब्रिटानिया जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, आर्थिक व्यवस्था बन गया। 5 नंबर। और आप बिजली कलिता जी को चुनाव जिताकर भेजेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है ना? मोबाइल आप देखना, उस मोबाइल पे लिखा है, पहले लिखा होता था 10 साल पहले, मेड इन चाइना। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। आज एप्पल का मोबाइल भी भारत में बन रहा है। हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, जापान को हम लोग मानते थे कि डैटसन, टोयोटा, जापान की गाड़ियां दुनिया में हैं। आज आपको जानकर खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल मार्केट में, यानी गाड़ियां खरीदने में, ऑटोमोबाइल की मार्केट में भारत जापान को पिछाड़कर अब तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। तीसरे नंबर का। इस्पात में, स्टील में हम चौथे नंबर पर खड़े थे, आज हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं। और मोदी जी को फिर जिताना, हम नंबर 1 पर इस्पात में खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टॉय इंडस्ट्री, खिलौना बनाने वाली इंडस्ट्री, चाइना हमसे आगे था। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि जो दीपावली में आप गणेश जी खरीदते थे और पूजा करते थे, वो चाइना से बनकर के आती थी। वो जो गणेश को आप पूजते थे, वो चाइना से बन के आती थी। आज टॉय इंडस्ट्री में भारत तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट कर रहा है। तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट कर रहा है। आज दवाई में दुनिया में 138% एक्सपोर्ट भारत का बढ़ा है। यानी दुनिया को, भारत को दवाई तो हम दे ही रहे हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट करके हम 138% की दवा दे रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि सबसे सस्ती दवा भारत बनाता है और सबसे असरदार दवा भी भारत बना रहा है और वो दुनिया को दे रहा है। यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश में हम लोगों ने एक समय में, कांग्रेस के जमाने में 25-25 साल लग गए भारत में दवाई आने में। 28 इयर्स। टेटनस की दवा को आने में भारत में 28 साल लगे। डिप्थेरिया की दवा को भारत में आने में 25 साल लगे। अन्य दवाइयों को भारत में आने में 30 साल लगे। जापानी बुखार, जो दिमागी बुखार होता है, उसकी दवाई को आने में 100 साल लगे। लेकिन मोदी जी ने कोरोना की दवाई 9 महीने में 2 वैक्सीन बना करके भारत को बचाने का काम किया। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से भारत आज विकास हो रहा है। और भारत में गांव का विकास,
ग्रामीण का विकास, गरीब का विकास, महिलाओं का विकास, युवाओं का विकास, किसानों का विकास, आदिवासियों का विकास, इसकी चिंता की गई है। और जब मैं ये बात आपको बोल रहा हूं तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, बताइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ 78 लाख किसानों को मिला है ना? मिला है ना? हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए मिलता है ना? और असम ने भी उसमें जोड़ा है ना? कितना जोड़ा है? 4,000 उन्होंने जोड़ा। तो इस तरीके से किसान सम्मान निधि, और आपको जानकर खुशी होगी कि गुवाहाटी में 12 लाख किसानों को इसके साथ जोड़ने का काम किया गया है। उसी तरीके से गैस का कनेक्शन, 11 करोड़ बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया, 11 करोड़ बहनों को। और उसमें से असम में 44 लाख बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया, और यहां गुवाहाटी में 83,000 बहनों को गैस का कनेक्शन दिया गया। मैं गांव से आता हूं, पहाड़ी इलाका से आता हूं, पहाड़ के इलाके से। मेरे यहां बहनें सुबह 5 बजे उठती थी, जंगल में जाती थी, लकड़ी काटती थी, लकड़ी का बोझा लेकर के पगडंडियों पर चल करके घर आती थी, चूल्हा जलाती थी, फूकनी लेकर के फूक करके धुआं के बीच में वो चूल्हा जला करके चाय बनाती थी। ऐसी स्थिति थी कि नहीं थी? बताओ, थी कि नहीं थी? आज 5 मिनट में टक से गैस का लाइटर जलाती हैं और 5 मिनट में चाय बना करके और आधे घंटे में भोजन बना करके घर को आगे बढ़ाती हैं। ये उनका सशक्तिकरण हुआ है। इज्जत घर, शौचालय, 12 करोड़ बहनों को शौचालय दिया गया, इज्जत घर दिया गया। और आपको जानकर के आश्चर्य, और सिवाय सिक्किम को छोड़कर सब जगह रेल कनेक्टिविटी, ऑल स्टेट्स में रेल कनेक्टिविटी पहुंचा दी गई है, यह भी किया गया है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 8 एयरपोर्ट्स बनाए गए, और 8 एयरपोर्ट्स में से 3 एयरपोर्ट वो असम में बनाए गए, 3 नए एयरपोर्ट बनाए गए। आपको जानकर खुशी होगी कि 50 अमृत भारत रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, अब आपको असम के रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में अंतर नहीं महसूस होगा, दोनों बराबर के वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं। 50 रेलवे स्टेशंस असम के रीडेवलप होंगे, उसके लिए अमृत भारत में काम चल रहा है। आपको टैक्सेस में, टैक्स के डिसोल्यूशन में 4 गुना वृद्धि की गई है। सेंट्रल ग्रांट इन एड में 3 गुना वृद्धि की गई है। ये बोगीबील ब्रिज, ये इतने सालों से लटका हुआ था, इसको 16 साल बाद किसी ने रूप दिया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये भी याद रखिएगा। उसी तरीके से भूपेन हजारिका सेतु, ये 2003 में तैयार होना था और 2017 में जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको पूरा किया है। आपके यहां 2500 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बन रहा है, और मुझे खुशी है कि मैं जब स्वास्थ्य मंत्री था तो मुझे ये सौभाग्य मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी की इच्छा के अनुसार गुवाहाटी को पहली बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देने का काम हुआ। 3 मेडिकल कॉलेज और दिए गए। आज असम साउथ एशिया का कैंसर केयर सेंटर का सबसे बड़ा सेंटर बन रहा है। कैंसर केयर सेंटर का 7 प्लेसेस में कैंसर केयर यूनिट खुल रहे हैं। उसी तरीके से विकास के दृष्टि से हर काम को, ये नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, इसका भी फाउंडेशन स्टोन गुवाहाटी में रखा गया है। आप बताइए, कभी सोच सकते थे कि नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की यूनिवर्सिटी खुलेगी? वी कुड नेवर इमेजिन। ये मोदी जी की सोच है जिसने नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी, साइंस यूनिवर्सिटी को गुवाहाटी कैंपस को खोलने का काम किया। उसी तरीके से गुवाहाटी को स्मार्ट सिटी में लिया गया, और इसी तरीके से अब तो कामाख्या माता के लिए भी रोपवे का प्रावधान किया जा रहा है, जो कामाख्या रेलवे स्टेशन से रोपवे के माध्यम से
कामाख्या मंदिर तक पहुंचने का काम होगा। इसलिए विकास की हर तरीके से नए आयाम को जोड़ने का काम हुआ है। मित्रों, मैं यहां एक बात और बोलना चाहता हूं कि एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने तय किया है कि हम भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करेंगे। लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने कहा, भ्रष्टाचार, गरीब आदमी के पैसे को खाने का काम जो लोग करते हैं, उन पापियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उनकी जगह जेल में होगी। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी और ये इंडी अलायंस और ये घमंडिया अलायंस ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। हम बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। अब आप तय करो, भ्रष्टाचार हटाना है ना? मुझे आवाज चाहिए, भ्रष्टाचार हटाना है ना? हटाना है ना? हटाना है ना? और एक तरफ वो बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आपको तय करना है, अगर भ्रष्टाचार हटाना है तो बिजली कलिता जी को आपको दिल्ली भेजना है। एक तरफ भ्रष्टाचारियों की पार्टी और एक तरफ भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने वाली पार्टी। एक तरफ परिवार को बचाने वाली पार्टी और एक तरफ परिवारवाद के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी। आप बताइए, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, ये फारूक अब्दुल्ला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये सुखबीर बादल की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये महबूबा मुफ्ती की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये अपना चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सब परिवार। और दूसरी तरफ एक गरीब घर से, साधारण घर से आया हुआ भारत का प्रधानमंत्री किया था कि नहीं किया था? आप बताओ, कांग्रेस ने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? कांग्रेस ने चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, कांग्रेस ने 3G 4G जीजाजी वाला घोटाला किया था कि नहीं किया था? आप बताइए, अखिलेश ने लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, अखिलेश ने फूड ग्रेन का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया मवेशियों का? अरे बताओ भैया, चारा खा गया कि नहीं खा गया? लालू ने अलकतरा खाया कि नहीं खाया? लालू ने जमीन के जगह नौकरी खाई कि नहीं खाई? आप बताइए, ये ममता के मंत्रियों ने टीचर घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ये ममता के मंत्रियों ने गाय की स्मगलिंग का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ममता के मंत्रियों ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ये केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज है, और घोटाले पे घोटाला। कोई चारा खाता है, कोई चीनी खाता है, कोई बालू खाता है। इस तरीके का घोटाला चल रहा है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, आप बताइए, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? बताओ भैया, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? और ये ए राजा बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, अरविंद केजरीवाल आजकल जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, समाजवादी नेता आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, टीएमसी के नेता जेल में है कि नहीं है? आप बताइए, डीएमके के नेता जेल में है कि नहीं है?
ये सारे नेता या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। आप बताइए, ऐसे बेईमानों को आगे आने देना है क्या? ऐसे बेईमानों को चुनाव जीतने देना है क्या? इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? इनको आप आराम दो, घर बैठाओ, और बिजली कलिता जी को आप काम करने का मौका दो, इसको आगे बढ़ाइए। ये मैं आपसे निवेदन। बोलो, आप करोगे ना? मोदी जी को मजबूती दोगे ना? फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय अहम।